Hello students, I hope you all are fine. I am Priyanka. Welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss the next topic of special economic zones in business environment in Haryana. So let us begin with the topic. This video covers the topics minimum land requirements for setting up special economic zones and approval mechanism for special economic zones in Haryana. So let us begin with the topic minimum land requirement for setting up special economic zones. In Haryana, land for the special economic zones is procured as per the policy and procedure of Haryana state government. So Special Economic Zones Act provide minimum land requirement for various types of special economic zones. So in Haryana जो डिफरेंट मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट्स थे वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए डिफरेंट थे. सो land for the special economic zones is procured as per the policy and procedures which are framed by the Haryana state government. So मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट कितना था 500 हेक्टेयर्स. सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और मल्टी सर्विसेज के लिए 50 हेक्टेयर्स लैंड. फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन के लिए 40 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एंड हैंडीक्राफ्ट्स बायोटेक्नोलॉजी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एंड IT सेक्टर के लिए nil. Minimum land requirement in case of IT sector has been removed. So it is the minimum land requirements for different special economic zones units. So different types of special economic zones के लिए different minimum land requirements थे for setting up special economic zones. Next comes approval mechanism for the special economic zones in Haryana. So first comes submission of project proposal, second screening by the project evaluation committees, next screening by the project approval committee, next approval of central government for setting up special economic zones, next approval to the business units to be set up in special economic zones. सो अप्रूवल मैकेनिज़्म क्या था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सेटअप करने के लिए इन हरियाणा. सो फर्स्ट स्टेप कम्स सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल. द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलपर्स who wants to establish special economic zones in Haryana submit their proposal to the Director Industries and Commerce Department Haryana. The Directors Industries and Commerce Department Haryana will forward this proposal to the concerned departments for their comments. फर्स्ट स्टेप क्या होगा अप्रूवल मैकेनिज़्म में कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के डेवलपर्स हैं उन्हें फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना प्रपोज़ल सबमिट करना होगा टू द डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा कि दे वॉन्ट टू एस्टैब्लिश द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड देन वो जो डायरेक्टर्स होंगे इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा के वो उनके उस प्रपोज़ल को फॉरवर्ड करेंगे टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स फॉर देयर कमेंट्स. सो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा मैकेनिज़्म में फॉर सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दैट इज़ सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोज़ल. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे प्रपोज़ल अपना सबमिट करेंगे टू द डायरेक्टर एंड जो डायरेक्टर होगा वो उनके प्रपोज़ल को कंसर्न डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड करेंगे फॉर देयर कमेंट्स. एंड ये जो प्रपोज़ल होगा ये सबमिट होगा टू द डायरेक्टर इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद द प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट की रिपोर्ट साथ होगी एंड उसी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सबमिट होगा जो कि प्रेस्क्राइब किया होगा डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा ने. नेक्स्ट स्टेप कम्स
Screening by the project evaluation committees. Haryana government has set up project evaluation committee to evaluate the projects submitted by the special economic zones developers to the industries and commerce department. This committee will also examine the comments given by the concerned departments. It also analyze the viability of the project, availability of power and other economic indicators. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अप्रूवल मैकेनिज्म में फॉर सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, दैट इज स्क्रीनिंग बाय द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी. स्क्रीनिंग पर्पस के लिए हरियाणा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी सेटअप करेगी सो दैट कि प्रोजेक्ट्स की इवैल्यूएशन हो पाए. उन प्रोजेक्ट्स की इवैल्यूएशन होगी इस स्टेप में जो कि सबमिट किए होंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलपर्स ने किनको, टू दी इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट. एंड ये जो कमेटी होगी ये उन कमेंट्स को भी एनालाइज करेगी, एग्ज़ामिन करेगी जो डिफरेंट कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने दिए होंगे ऑन दी प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलपर्स. एंड ये जो कमेटी होगी ये प्रोजेक्ट की वियाबिलिटी को भी एनालाइज करेगी, पार की अवेलेबिलिटी को भी एंड अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी एनालाइज करेगी. एंड इवैल्यूएशन कमेटी में अब मेंबर्स कौन कौन से होंगे. सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट एज अ चेयरमैन, डायरेक्टर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट एज अ मेंबर, मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एज अ मेंबर, मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा विद्युत प्रसरण निगम एज अ मेंबर, इंजीनियर इन चीफ इरिगेशन डिपार्टमेंट एज अ मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एज अ मेंबर, एंड कंसर्न मैनेजिंग डायरेक्टर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम एज अ मेंबर, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट एज अ मेंबर who is working as a secretary. So evaluation committee में ये कुछ members होंगे including the member as a secretary and including one chairman. Next comes the screening by the project approval committee. Haryana government has set up a project approval committee which finally approve, reject or modify the project for the establishment of special economic zones on the basis of recommendations of project evaluation committee. So next step in the approval mechanism for setting up of special economic zone is screening by the project approval committee. हरियाणा गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी को सेटअप करेगी जो फाइनली अप्रूव करेगी, रिजेक्ट करेगी या मॉडिफाई करेगी प्रोजेक्ट प्रपोजल को फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. किसके बेसिस पे, जो भी रिकमेंडेशंस दी होंगी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी ने उसके बेसिस पे. सो प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होंगे. चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ चेयरमैन, Secretary to Government of India Finance Department as a member, Secretary to Government of India Industries and Commerce Department as a member, Secretary to Government of Haryana Town and Country Planning Department as a member, Secretary to Government of Haryana Environment Department as a member, and Director Industries and Commerce Department as a member who is working as a secretary. सो प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी में ये कुछ मेंबर्स होंगे. नेक्स्ट कम्स अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. Central government has constituted a board of approval under the Special Economic Zones Act. The board of approval is constituted by the central government under the Special Economic Zones Act. This board has 19 members and the board is chaired by the Secretary, Department of Commerce, Government of India. After the special economic zones is approved by the board of approval, central government notifies the areas of that special economic zones.
So fourth step in the approval mechanism for setting up of special economic zone is approval of central government for setting up of special economic zone. So इस स्टेप में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक बोर्ड ऑफ अप्रूवल कॉन्स्टिट्यूट करेगी अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट, एंड जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल है वो कॉन्स्टिट्यूट किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट के अंडर। एंड इस बोर्ड में 19 मेंबर्स हैं एंड चेयरपर्सन कौन होगा बोर्ड में? सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की अप्रूवल हो जाएगी बाय द बोर्ड ऑफ अप्रूवल, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ एरियाज़ नोटिफाई करेगी एज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। Next is approval to businesses units to be set up in special economic zones. So next step in the approval mechanism for setting up special economic zone is approval to the business units to be set up in special economic zones. After the notification of special economic zone by the central government, an approval committee is formed at the zonal level. This committee finalizes the proposals of the business units to be set up in special economic zones. For this purpose, business units have to submit their proposal to the approval committee, and the performance of the business units set up in special economic zones is periodically monitored by the approval committee. इस स्टेप में एक अप्रूवल कमेटी फॉर्म की जाएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द जोनल लेवल, एंड ये कमेटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स के प्रपोज़ल को फाइनलाइज करना। एंड फॉर दिस पर्पस जो बिजनेस यूनिट्स हैं उन्हें अपने प्रपोज़ल को सबमिट करना होगा टू द अप्रूवल कमेटी, एंड जो बिजनेस यूनिट्स सेटअप किए जाएंगे बाय द अप्रूवल कमेटी उनकी टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होगी। And each special economic zone is periodically monitored and is headed by the development commissioner, and सभी special economic zones में एक head होगा who is called development commissioner, जो responsible होगा for the administrative control of the special economic zone. So as per Haryana Special Economic Zones Act 2005, development Commissioner provides the single window clearance services in the special economic zones. So इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो डेवलपमेंट कमिश्नर होगा वो सिंगल विंडो क्लियरेंस सर्विस प्रोवाइड करेगा टू द बिजनेस यूनिट्स विच आर सेट अप इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. Next comes the key regulators for the special economic zones in India. So key regulators कौन कौन से होंगे special economic zones के? First is central government, जिसके पास ओवरऑल अथॉरिटी होगी इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को गवर्न करने की, नोटिफाई करने की, एंड लेटर ऑफ अथॉरिटी इन यूनिट्स के लिए ग्रांट करने की. नेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, जिनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? प्रपोजल्स को रिसीव करना फ्रॉम द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलपर्स एंड अपनी रिकमेंडेशंस देना टू द बोर्ड ऑफ अप्रूवल. नेक्स्ट बोर्ड ऑफ अप्रूवल, जिनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि उन प्रपोजल्स को कंसीडर करना, एंड जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल है वो परमिशन ग्रांट करेंगे टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलपर्स कि वो अपने बिजनेस यूनिट्स को सेटअप करें इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. नेक्स्ट अप्रूवल कमेटी होगी, जिनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि टाइम टू टाइम मॉनिटर करना जो बिजनेस यूनिट्स सेटअप हुए हैं इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उनकी वर्किंग को सुपरवाइज़ करना. नेक्स्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. सो दीज ऑल आर द की रेगुलेटर्स ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया. नेक्स्ट कम्स फंक्शंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलपर्स. सो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलपर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. So first function comes
preparing the development plan of the special economic zones with the provisions of Haryana Economic Zones Act 2005. It means development plan को prepare करने के लिए responsible होंगे special economic zones developers in consistency with the provisions of the Haryana Economic Zones Act 2005. And next main function क्या होगा special economic zones developers का? development करना साइट की प्लेस की फॉर द इंडस्ट्रियल कमर्शियल और अदर पर्पसेस. नेक्स्ट एलोकेशन करना और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की ट्रांसफ़र करना टू द वेरियस बिजनेस यूनिट्स टू सेटअप स्पेशल इकनॉमिक जोन्स. नेक्स्ट रेगुलेट करना बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन को एंड सेटअप करना मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ इन द स्पेशल इकनॉमिक जोन्स. नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल की फैसिलिटीज़ को मेंटेन करना, इम्प्रूव करना. नेक्स्ट जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन करना एंड सप्लाई करना टू द यूनिट्स विच आर लोकेटेड इन द स्पेशल इकनॉमिक जोन्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर टुडेज़ वीडियो. आज की वीडियो में हमने स्टडी किए टॉपिक्स मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट्स for setting up of special economic zones. Next, approved mechanism for the special economic zones in Haryana. So this is all about our today's video. Thank you so much.